Hello, student. Good evening to all. Okay, I hope all of you did well in your midterm examinations. After a long time, we are meeting together, and today we are going to start a new chapter, that is indefinite integration. And this is the first lecture of indefinite integrations. Okay, so already I hope you have completed this topic in your school also. So let's first, in the first lecture, what we'll do, we'll discuss the some formula and some basic concept of integration, the indefinite integrations. Okay, so let's start from there only. So what is actually integration? Let's see. What is integration? Integration is nothing. It is the reverse process of differentiation. What is it? The reverse process of differentiation. So all of you know what is differentiation, right? Yes or no? Differentiation सबको पता होगा. काफी अच्छे से हम लोग वो टॉपिक को कवर कर लिए थे ऑलरेडी. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर कोई भी फंक्शन, जैसे इफ आई एम टेकिंग, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, राइट. एंड और भी एक फंक्शन है जिसका जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स. हियर व्हाट आई एम सेइंग, डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट. ओके, एंड दिस इज कैपिटल, मतलब डी मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स is giving you capital F of x. Okay, so this is the process of differentiation. What we are trying to understand, this is indefinite integrations. So what we'll do, if we'll integrate, if we'll go through reversely, here we are going from small to capital. If we'll go through capital to, if we'll try to reach from capital to small f of x, so what should you do? Now if you integrate capital F of x with respect to dx, है ना, you will get small f of x plus c. ओके, छोड़ो, अभी c के बारे में बाद में बात करेंगे. स्मॉल f of x तुम्हें मिलेगा. समझ में आ रहा है सबको, है ना? सो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx of sin of x is cos of x, right, then integration of cos of x will be with respect to x में it will be sin of x plus c. c के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. तो sin x की अगर डिफरेंशिएशन cos x हो रहा है, तो cos x की जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x में, वो होगा sin x. आया समझ में सबको? क्लियर आ रहा है कि नहीं समझ में? बताओ, है कि नहीं? क्लियर है ना? है ना? सो दिस इज द एक्चुअली different definition of indefinite integrations, that is the reverse process of differentiation is called indefinite integration simply you can say, right. Chalo, let's now try to understand what is the geometrical meaning of this constant of integrations, right. Here we have already discussed about, we are telling if differentiation of sin of x is cos x, then integration of cos x is sin x plus c. ठीक है, एंड हियर ऑल्सो वी कैन ऐड वन c, है ना. तो ये कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय दिस फिगर, है ना. इफ आई टेक simple thing, if I'll take two functions, suppose I'm taking here x square, right, and I'm taking x square and also I'm taking 2x, right, x square and 2x I'm taking here, ठीक है. So what is the differentiation of x square? If I'll ask you, find the differentiation of x square, you know that is 2x. And if I'll ask you to find the differentiation of x square plus 2, it is also 2x. yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बताओ. If I'll ask you to find the differentiation of x square plus any constant,
it will be also dx, sorry 2x, right? That means if you are adding any constant with the functions and if you are differentiating that function, what you are getting, that is exactly, those are exactly same. मतलब आई एम टेकिंग हियर एक्स स्क्वायर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है जो, दैट इज 2 ऑफ एक्स, है ना, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज आल्सो 2x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c इज आल्सो 2x. इज दैट क्लियर, है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू say that is, if we'll integrate 2x, right, if we'll integrate 2x with respect to x, what we'll get, we can write here x square, we can write this is also as x square plus 2, this we can write x square plus 3 also we can write, and as generally we can write this is equal to x square plus c, है ना, है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो कोई भी कांस्टेंट को अगर हम ऐड करेंगे, है ना, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही सेम फंक्शन तुम्हें मिलने वाला है, सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ए कांस्टेंट विद द फंक्शन. When you are integrating and what you are getting, you need to add a constant. Why? Because this reason, ये रीजन के लिए. अच्छा, उसको अगर हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो, अच्छा, जो फिगर हम लिए थे, जो फंक्शन हम पहले वाला लिए थे, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, ब्लू वाला ग्राफ, दैट इज रिप्रेजेंट्स टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, and this is the graph of y is equal to x square plus 2, right? Everyone clear, है ना? So that means what we are trying to convince here, क्या मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं एक्स स्क्वायर को भी ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भी ले सकता हूँ, और आई कैन टेक एनी कांस्टेंट एंड आई वार इंटीग्रेशन के बाद. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है ना? अच्छा, जब तुम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए, तुम्हें क्या मिला? यू आर गेटिंग 2x. इज दैट और नॉट? यू आर गेटिंग 2x. समझ में आ रहा है सबको? when you are differentiating x square plus 2 also, you are getting 2x. that means here you are taking d by dx na, so that means what you are getting, you are finding slope of tangent at a point, है कि नहीं? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है? अच्छा, तो 2x की अगर मैं कोई भी एक पॉइंट में 2x की लाइन ड्रॉ करूं, समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया और मुझे क्या मिला ना, 2x मिला. मैं अगर टेंजेंट को ड्रॉ करूं, कोई भी एक पॉइंट में टेंजेंट को ड्रॉ करूं, इस पॉइंट में मैं टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये पॉइंट में सपोज ए ले लिया, तो ए पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैं, दैट इज ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना, ये वाला फर्स्ट वाला ये मेरा टेंजेंट है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को टेंजेंट है. ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ब्लू वाला डॉटेड लाइन इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड जो ये येलो वाला टेंजेंट है, दैट इज टेंजेंट टू dy by dx टू this x square plus 2. so you can observe here, you can observe here, you are getting two parallel tangents. समझ में आ रहा है सबको? You are getting two parallel tangents to both the functions. You are getting one tangent for a y is equal to x square, another tangent for y is equal to x square plus 2, right? समझ में आ रहा है सबको? तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें दो पैरेलल टेंजेंट मिल रहा है. तो ये जो टेंजेंट की स्लोप होगा, सपोज ये अगर मेरा एम है, तो ये टेंजेंट की भी स्लोप एम होगा, क्योंकि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. यस और नो? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट? सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मुझे स्लोप मिल रहा है, दोज आर सेम. समझ में आ रहा है? सारे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है. तो अगर हम ये दोनों टेंजेंट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये स्लोप को अगर हम इंटीग्रेट 2x को इंटीग्रेट करेंगे, 2x को इंटीग्रेट करेंगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, ये एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा. जैसे कि तुम्हें एक्स स्क्वायर मिला है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यू कैन टेक एक्स स्क्वायर प्लस
4 you can take x square, minus 4 also you can take, any constant you can add or subtract, right? समझ में आया सबको? Clear everyone? Done है ना? तो that's why we are adding constant with, when you are integrating a function with the answer, we need to add a constant, because when we are differentiating reversely, we are getting this, we are getting the same result for all the constant. Is that clear? I hope this is clear to everyone, guys. Clear everyone? Chalo, let's move to the next question. Here we are having some formula, right? So formula क्या है ना, यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं तुम्हारे लिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दिया है ना, x टू, ये बोल रहा है कि भाई जो x टू द पावर n की इंटीग्रेशन होगा, x टू द पावर n की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x में अगर हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, दैट इज x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c, है ना? ये बोल रहा है ये when n is not equal to माइनस वन, है ना? तो ये मेरा जो है ना पावर रूल है, इंटीग्रेशन का क्या है ना, पावर रूल है। समझ में आया सबको? ये सुनो, ठीक है? तो कैसे हुआ एक्चुअली, देखो, अगर हम, मैं तुम्हें ये बताऊं कि डिफरेंशिएट करो ये फंक्शन को, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर n प्लस वन को, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स को, मुझे ये फंक्शन x टू द पावर n मिल रहा है क्या? लेट्स चेक। अच्छा, मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n, एक्स्ट्रा टर्म वी आर गेटिंग, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स टू द पावर n। ये सुनो, सो अगर मैं दोनों साइड में n प्लस वन को डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों साइड में n प्लस वन को डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों कैंसिल हो गए, है कि नहीं? समझ में आया? अगर मैं कांस्टेंट को आर भी कर दूं, कोई दिक्कत है? कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है ना? तो मुझे क्या मिला? एक्स टू द पावर n। तो मैं रिवर्सली ये बता सकता हूं कि एक्स टू द पावर n की जो इंटीग्रेशन होगा, दैट इज एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? इजी है, समझ में आया सबको, है कि नहीं? यस सर, नो, बोलो। क्लियर? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? ये एक तो फॉर्मूला गया मेरा, नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेम प्रोसेस में वी आर टेलिंग हियर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज ln x प्लस c, राइट? ln x प्लस c। सो हाउ विल फाइंड इट? कैसे मिलेगा? मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। तो सिंपली ना, if we'll integrate 1 by x with respect to x, so we'll get ln of x plus c, है कि नहीं? मैं मॉड ले रहा हूं x के साथ, क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दिया है? e टू द पावर x की इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, क्यों? मुझे पता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज आल्सो e टू द पावर x। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं इंटीग्रेशन भी करूं विथ रेस्पेक्ट टू x में, मुझे आंसर क्या मिलेगी? टू द पावर x प्लस c। क्लियर एवरीवन? सिमिलर प्रोसेस में तुम इसको भी कर सकते हो, है कि नहीं? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? यस और नो? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ये, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन पता है तो आराम से तुम इंटीग्रेशन को कर सकते हो। जैसे कि लास्ट वाला में क्या कर सकते हैं हम? लास्ट वाला क्वेश्चन में, फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं? देखो, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था ना, यहाँ पे देख लो, a टू द पावर x की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x में a टू द पावर x अपन ln ऑफ a प्लस c, राइट? ठीक है, चलो करते हैं फिर। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है ना? a टू द पावर x इंटू ln ऑफ a, राइट?
हाँ कि ना, बोलो, है कि नहीं, बोलो। तो ये मुझे पता है कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता ही है अगर मैं दोनों साइड में डी बाई डी एक्स और ए रेस टू एक्स अपन एल ऑफ ए कर दूं। कोई दिक्कत है तुम्हें? ए रेस टू एक्स इंटू एल एन ए अपन एल एन ए कर दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, अगर मैं देखो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए टू द पावर एक्स। तो मैं ये अभी ये बता सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स अपन एल एन ए इज ए टू द पावर एक्स, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में क्या हो जाएगा ना? ए टू द पावर एक्स अपन एल एन ए प्लस। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला। क्लियर, राइट? Okay, let's move to other formulae. Here some theorems you are having for integration. Let's see. First theorem में ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, अगर हम, मैं ये बता रहा हूं कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे दिया है, कोई भी कांस्टेंट को अगर कोई भी एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वही सेम आंसर मिलने वाला है, कोई भी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से बाहर को अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? ओके। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस और माइनस f2x। दो फंक्शन है, दोनों का एडिशन में है, एक फंक्शन बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली ऐसे है कि दो फंक्शन अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक f1 है एक f2 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला के एक साथ इंटीग्रेट करूं सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर इंडिविजुअल इंटीग्रेट करूंगा तो वही सेम आंसर मिलने वाला है। आए समझ में सबको? एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो इट इज राइट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो सिमिलरली द लास्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट हियर। व्हाट इज दैट? इट इज सेइंग इफ, ये बोल रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देखो, इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि देन ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में क्या होगा ना? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए प्लस, दिस विल बी द आंसर। ये बोल रहा है ये। ठीक है, क्लियर एवरीवन? है ना? ये बोल रहा है ये चीज ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दूं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? ये फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना? दैट विल बी, इफ विल यूज द पावर रूल, तो ये इट बिकम्स 2x प्लस 3, है ना, 2 प्लस 1 दैट इज 3 पावर में, एंड न्यूमरेटर में भी 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस c। ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? है कि नहीं? इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना? दिस विल बी 2x प्लस 3, पावर रूल यूज करेंगे तो पावर में 1 को ऐड करेंगे, दैट इज 2 प्लस 1 विल बी 3 एंड डिवाइडेड बाय 3। कुछ गलत किए हैं हम? गलत किए हैं क्या, बोलो? अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो देखो, यहाँ पे हम क्या किए थे ना? ए को डिवाइड किए थे। तो यहाँ इस केस में, एग्जाम्पल के केस में ए कौन है भाई? एक्स की कोएफिशिएंट कौन है? 1/2, 2 है। तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दें।
Clear everyone? So this becomes now 2x plus 3 की cube upon 6 plus. Clear? This is the integrations you can do. राइट इसको अगर और भी अच्छे से समझेंगे तो ये दिया था क्या क्वेश्चन में, ये दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. सो नाउ वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स is small of f of x. So we can write here f dash of x is equal to f of x, small f of x. Yes or no? Similarly, in other case, what we are doing, d by dx of capital f of x plus b को मैं ले रहा हूं. ठीक है, तो इस केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं ना. सो दिस विल बी, वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट. देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की अगर ये दिया था ना, इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, so differentiation of capital f of x will be small f of x. So this d by dx of capital f of x can be written as f dash of x, capital F dash of x. So अगर ये रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज करूं, कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं आराम से ये रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. सो दिस बिकम्स नाउ f dash of x plus b. Yes or no? f dash of x plus b into चेन रूल यूज करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट इज ए. यस और नो? बोलो. तो देखो नाउ सी राइट हैंड साइड में क्या है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. अगर दोनों साइड में मैं ए को डिवाइड कर दूं, सो एफ कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपन ए कर दूं, कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है. व्हिच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एफ डैश ऑफ कैपिटल एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या मिला है तुम्हें? देखो यहाँ पे कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, सो कैपिटल एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. क्लियर एवरीवन? यस और नो? आए समझ में सबको? सेम रिजल्ट वी आर डूइंग. सो व्हेन यू आर हैविंग, अगर तुम्हें ये चीज पता है तो ये चीज को याद रखो. अगर तुम्हें ये चीज पता है ना, सिंपली ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें बार बार कि अगर तुम्हें ये पता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा ना, कैपिटल एफ ऑफ x in place of x we need to write x plus b divided by a. x की कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं है. समझ में है सबको? x की जो कोएफिशिएंट होगा उसको बस डिवाइड करना है. क्लियर एवरीवन? चलो लेट्स मूव. नाउ वी हैव एन एग्जांपल. मेरे पास एक एग्जांपल है तुम लोगों के लिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, यू नीड टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ln a. अच्छा तो चलो उसको थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ln x. सो वी नो x ln a can be written as ln of a to the power x. So here in place of e to the power x ln a we can write e to the power ln a to the power x. Right or not? Yes or no? Okay. माइनस और क्या है मेरे पास ना, e टू द पावर a ln x. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर ln x टू द पावर a प्लस इस केस में क्या है ना, 3 इंटू e टू द पावर a ln a, दैट इज a टू द पावर a है. ठीक है, a टू द पावर सॉरी क्या हो जाएगा, ln a टू द पावर a है ना, विथ रेस्पेक्ट टू dx में x में हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे. देखो ये तो सिंपल हो गया भाई, ये रिजल्ट है लॉगरिदमिक का, एक रिजल्ट यूज है. दूसरा रिजल्ट हम यूज करेंगे क्या
ना मुझे पता है कि e टू द पावर ln x जो होता है ना दैट इज x, ठीक है, e टू द पावर ln x जो होता है दैट इज x, राइट। तो इस केस में ये रिजल्ट को अगर हम यूज करेंगे तो e टू द पावर ln a टू द पावर x क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, सिंपल है ना। इस केस में भी e टू द पावर ln x टू द पावर a है, तो मैं लिख सकता हूं x टू द पावर a प्लस 3 इंटू ए टू द पावर a विथ रेस्पेक्ट टू x में इंटीग्रेट करो, अभी आराम से तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, है कि नहीं, बोलो। तो a टू द पावर x की इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी देखे थे ना फॉर्मूला, दैट इज a टू द पावर x अपॉन ln ऑफ a माइनस x टू द पावर a की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर रूल यूज करेंगे तो x टू द पावर a प्लस वन बाई a प्लस वन प्लस 3 इंटू a टू द पावर a इज कांस्टेंट, ये सुनो। तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं, वन की इंटीग्रेशन क्या होता है ना, x होता है, दैट इज दिस, दिस इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन, क्लियर और नॉट, बोलो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो तुम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू, मेरे को दिया है इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपन एक्स प्लस वन, तो क्या करें हम, करें तो करें, क्या करें बोलो, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं तुम लोगों को ना एक काम करता हूँ, टाइम दे देता हूँ 1 मिनट, ये इंटीग्रेशन को करके मुझे सॉल्व करके बताओ। मिला आंसर सबको, क्या होगा आंसर इसका बताओ, चैट बॉक्स में बोलो, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन उसको। देखो क्या कर सकते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा न्यूमरेटर को ना, न्यूमरेटर के ऊपर थोड़ा काम करेंगे हम। तो क्या करना है, एक्स प्लस वन नीचे है, अगर मैं ऊपर भी एक्स प्लस वन ले आऊंगा, है ना, तो सिंप्लीफाई में कर सकता हूँ ये फंक्शन को, कैसे लाएंगे, एक्स क्यूब है, अगर मेरे को और एक वन मिल जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का फॉर्मूला लगा के मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसीलिए क्या किया, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन कर दिया डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, अभी कर सकते हो ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे फिर, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, अभी सिंप्लीफाई हो गया सबके लिए, है ना। तो इन दोनों को मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना, दिस विल बी, वी कैन राइट एक्स प्लस वन को कैंसिल करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अरे इसके साथ, इसके साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, फिर इसके साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, है ना, समझ में आया सबको, चलेगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अभी आराम से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन की डिफरेंसेस इंटीग्रेशन क्या होगा ना, एल एन ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, दिस इज योर आंसर। क्लियर, सिंपल, ये आंसर हो गया सबके लिए, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो आई एम गिविंग यू 1 minute, ट्राई टू सॉल्व इट।
Solve it and let me know in the answer in the chat box. Anyone got the answer? Anyone got the answer? Let's solve it. So how we can solve it? Simplify this function. This is important, right? तो हम ना थोड़ा उसको अच्छे से लिख देते हैं. So 4 raised to x can be written as 2 raised to x का स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 3 raised to x का स्क्वायर, 9 टू द पावर x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, 6 टू द पावर x को मैं ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, राइट, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू x को हम कैसे लिखेंगे फिर, 10 रेज टू x को हम क्या कर सकते हैं, बोलो, उसको भी 5 इंटू 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, ओके, 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x कर देते हैं, और इसको भी 5 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x कर लेते हैं. देखो न्यूमरेटर में क्या बनना है, न्यूमरेटर में बन रहा है 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का स्क्वायर, and denominator में if I'll take common 5 raised to x, you are having 2 to the power x plus 3 to the power x dx, right? So see, from numerator and denominator 2 to the power x plus 3 to the power x are cancelling together, and finally what we are having right now, that is 1 upon 2 to the power x plus 3 to the power x upon 5 to the power x with respect to x. क्लियर है ना, तो इसको भी हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 2/5 टू द पावर x प्लस 3/5 टू द पावर x dx. अभी आराम से a टू द पावर x का फॉर्मूला लगा के तुम आराम से उसको कर सकते हो. कैसे, तो a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 टू द पावर x बाई ln ऑफ 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर x अपॉन ln ऑफ 3/5 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. क्लियर एवरीवन, सिंपल है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, है ना. दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ योर क्लास, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस बहुत बेसिक बेसिक चीज हम कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में ना हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे चल जाएंगे. दैट इज वन इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ बाई पार्ट्स, है ना. तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो ये तीन मेथड को हम नेक्स्ट क्लास से स्टडी करेंगे, ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन गाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हियर. Okay, see, on your screen you are having some formula. Let's see, already we have discussed these things, है ना. So we know why these are the formulae, है ना, based on the definition of integration, right, है ना. तो डेफिनेशन मींस, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक फंक्शन को ले लूं, मुझे पता है जो डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है, दैट इज साइन ऑफ एक्स, है ना, माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट. तो मैं ये करूं ना, अगर मैं साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो माइनस इस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जैसे कि और भी ले सकते हैं हम,
मुझे पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेकंड स्क्वायर ऑफ x, ये सम सेकंड स्क्वायर ऑफ x, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x क्या हो जाएगा, दैट इज tan x प्लस। So similarly, all these six formulae you can explain or you can understand all these things. All of you know what is the derivative of sec x, that is sec x plus, sorry, sec x into tan x. So integration of sec x into tan x will be sec x, right? Similarly, you know the differentiation of cosec x is cosec x minus cosec x into cot x. So integration of cosec x into cot x will be minus cosec x plus c, right? Clear everyone? Okay, so all these formula you need to remember. These are very basic formula and these are very useful. कहीं पे भी तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज होगा तो ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे फॉर्मूले को एक एक नोट करते चलो, हम अभी तक 10 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो ये 10 फॉर्मूले को ना एक एक करके तुम्हारे नोट में नोट करते चलो, है ना। तो लास्ट में एक फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, बंच ऑफ फॉर्मूला मिलेगा जिसको तुम यूज करके एग्जाम के टाइम पे तुम याद कर सकते हो, आराम से इजीली याद कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे नोट में ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव नाउ। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी आर व्हाट आई एम सेइंग, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस log ऑफ mod of cos x plus c, and also it is also equal to log of sec x plus c, log of sec mod of sec x plus c, ठीक है। तो कैसे करें उसको, देखो, अगर अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए ट्राई करूं तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो tan x आना चाहिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x में ln ऑफ secant ऑफ x c डिफरेंशिएट करो, तो मुझे पता है ln ऑफ x की डिफरेंशिएशन होता है 1/x, एंड x की जगह में क्या है मेरे पास, secant ऑफ x, ठीक है, 1/secant ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ secant ऑफ x इज, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ secant x, चेन रूल यूज करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ secant ऑफ x क्या होता है, दैट इज tan ऑफ x इंटू secant ऑफ x, है कि नहीं, ठीक है। और क्या है, ये तो हो गया फिर, तो secant ऑफ x secant ऑफ कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिला क्या ना tan x, मुझे यहां से मुझे मिल रहा है, तो ये जो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके मुझे मिल रहा है tan ऑफ x, तो अगर मैं tan x को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली आई कैन राइट ln ऑफ mod ऑफ secant ऑफ x प्लस c, राइट, है ना। इफ integration differentiation of this function is tan x, then reversely we can say integration of tan x will give you ln of sec x plus, right? Clear everyone? अच्छा, ये बीच वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये बीच वाला फॉर्मूला कैसे आया भाई, सिंपल सा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ 1/cos x प्लस c, है कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो by using the logarithmic property, ln of 1/x is equal to minus of ln of x, right? ऐसा ना, ये सर नो, है ना। तो मैं यहां से ये बता सकता हूं कि माइनस दिस विल बी माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस, है ना। तो ये बीच वाला जो फॉर्मूला था वो भी आ गया, आया समझ, ये भी आ गया। क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर। लेट्स मूव टू अनदर फॉर्मूला, यहाँ पे वही सेम मेथड यूज करके भी तुम कर सकते हो, तो इसको कैसे करें, इसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको पता होगा थोड़ा थोड़ा सा, वो भी कर सकते हो। कैसे, जैसे कि cot x को मुझे पता है, वी कैन राइट दिस एज cos x बाय sin x dx। अच्छा, क्यों मैं ले रहा हूँ, इजी है, मैं सब्स्टिट्यूशन के यूज करना यहाँ पे इजी है। देखो, मैं अगर लेट आई एम टेकिंग sin x इज इक्वल टू t, अगर दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, cos x dx will give you dt, ये सुनो, लेफ्ट साइड में क्या मिला तुम्हें cos x, राइट हैंड साइड में dt अपन dx मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखो अभी क्या हो गया ना, डिनोमिनेट इन द न्यूमरेटर यू आर हैविंग cos x dx, in the numerator you are having cos x dx, so in place of cos x dx we can write dt upon
इन प्लेस ऑफ साइन एक्स विल राइट टी. सो नाउ इट्स इजीली इंटीग्रेबल. तो ये क्या हो सकता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln of t plus c. So now in place of t you have to resubstitute what you have taken. So that is ln of sin x plus, है ना. दिस इज द 12th नंबर फॉर्मूला, है ना. तो cot x की जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln ऑफ mod of sin x plus c. ln ऑफ mod of sin x plus c. क्लियर एवरीवन, है समझ में सबको, बोलो. इज दैट क्लियर. सिंपली ऐसे भी कर सकते हो तुम, ln ऑफ mod ऑफ sin x को तुम डिफरेंशिएट करो, तुम्हें cot x भी मिलेगा. सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. ओके ये जो फॉर्मूला है उसको भी ऐसे भी कर सकते हो. क्या है ना, cosec x dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी गिविंग यू log ऑफ tan ऑफ x by 2 plus c और log ऑफ cosec ऑफ x माइनस cot ऑफ x, राइट. इसको अगर हम फिर से करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तुम आराम से डिफरेंशिएट करो ना. किसको डिफरेंशिएट करोगे, 20 वाला जो है, d by dx ऑफ cosec ऑफ x माइनस कॉट ऑफ एक्स, है ना. इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ. सो कॉसेक ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना. बोलो और भी क्या हो सकता है, और कुछ मेथड यूज कर सकते हैं हम. कर सकते हैं कॉसेक एक्स को 1/sin x, नहीं वो मेथड तुम्हें पता नहीं, छोड़ो. ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना. एंड ये cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x. ये हो जाएगा, है कि नहीं. इसको सिंप्लीफाई करो फिर. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, cosec x cot x. अच्छा और ln भी था ना यार, मैं छोड़ दिया हूँ, ln ऑफ दिस. तो ये लेंदी हो जाएगा फिर. चलो चलो देखो देखो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा फिर ना, 1 cosec x माइनस cot x into derivative of this. Now derivative of cosec x is minus of cosec x into cot x. फिर और क्या है, और भी है ना. एंड cot x की जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x. ठीक है ना, ये हो गया. ठीक है. तो यहां से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को मिलेगा क्या, -1. और ये तो प्लस हो जाएगा ना, इनटू इसको अगर मैं इसके साथ डिफरेंशिएट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ 1 ऊपर कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना. ऐसे मिलेगा तुम्हें. क्या था, ये प्लस हो जाएगा यार, ये प्लस हो गया. तो दोनों से अगर कॉसेक एक्स को मैं कॉमन ले लूं, सॉरी यार, यहाँ से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये दोनों से अगर मैं cosec x को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे cosec x, है ना, cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot ऑफ x. कैंसिल हो गया और फाइनली मुझे क्या मिला ना, cosec ऑफ x. राइट. क्लियर एवरीवन, आया समझ में. अच्छा, ये tan ऑफ x बाई 2 को भी तुम आराम से ले सकते हो. कैसे ना, cosec x को कन्वर्ट करो 1/sin x में, cot x को cos x/sin x में करो, तो ये भी हो जाएगा. देखो कैसे करोगे ना, ये जो ln ऑफ cosec ऑफ x माइनस cot ऑफ x है ना, उसको ऐसे लिखो
ln of 1 upon sin of x माइनस cos x अपन sin x, ये हो जाएगा। तो फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ sin x ऊपर क्या हो जाएगा ना 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। तो 2 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ x बाई टू कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ठीक है, ln ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस c। है समझ में सबको, क्लियर। चलो अगर ये हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। सेम प्रोसीजर यूज करके तुम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो, ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वी नो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन ऑफ 2x, राइट। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स गिव्स यू साइन ऑफ 2x। तो इफ आई मल्टीप्लाई 4 and divide 4 with the given function, is there any problem? No ना। तो this will become now, क्या कर सकते हैं उसको, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 4 साइन मतलब 2 साइन एक्स कॉस, तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x को हम और भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बोलो। सो वी नो साइन साइन ऑफ थीटा, कॉस 2 थीटा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वहां से मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, देखो मुझे पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस कॉस 2 थीटा वी कैन डिराइव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे थीटा के प्लेस में मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ 2x है ना। सो आई विल राइट, ट्राई टू राइट साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को, मैं साइन स्क्वायर थीटा के जगह में 2x लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ना 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 dx। नाउ you can easily integrate or not, now easily integrate, okay? 1 upon 8 integration of 1 is, डायरेक्ट कर लेते हैं ना, x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, एंड देन cos ऑफ 4 थीटा की इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ 4 थीटा बाई 4 प्लस, ये हो जाएगा आंसर, ये x है 4x। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आया समझ में सबको, बोलो क्लियर एवरीवन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ट्राई टू नोट इट डाउन और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग सम अदर फॉर्मूला आल्सो, यू कैन नोट इट डाउन, इसको तुम अभी के लिए याद रख लो, बाद में हम डिस्कस भी करेंगे उसका डेरिवेशन कैसे होता है, और भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, हम बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम 17 क्वेश्चन को, 17 फॉर्मूला को कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मेथड ऑफ integrations and we'll start only the method of substitution methods, integration by method of substitutions. Okay, so that's all for today's class. Thank you all, bye bye, take care everyone.